Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 14th June, 4:30 p.m. and today we are back with the market analysis, outlook and prediction for Tuesday, right? So Monday the markets will be closed on the occasion of Bakri Eid, right? So when the market will be opening on Tuesday, it will factor uh, Fridays, which is today's American markets, US markets and Monday's markets also, global markets or US markets. Why I'm mentioning US markets is basically Indian markets majorly depend upon US markets, right? So Tuesday, many things will get factored in the time decay. If there is any uh, unexpected thing happening in geopolitics situation, right? So that also our markets will factor. So we'll discuss in this video, right, that what will be some crucial levels for Tuesday, how we are gonna approach the market, seeing this week particularly it was heavily range bound, right? There was no option for there was no chance for option buyers to survive, right? So seeing all this, we'll discuss that what the approach should be, and we'll once discuss that what discussion we have been doing through the past this the week which went by, and what actual strategy we should apply, how should we approach the markets for coming week if the market will be range bound as it was this week, right? So without consuming any more time, we'll straight go to the charts, right? And one more thing, अगर आप if you're someone new who is watching our video for the first time, and if you're liking the content, leave a subscribe to the channel. And if you are a regular viewer, like the channel, अगर अच्छी लगती हो तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा, सपोर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है एंड चैनल को ग्रोथ मिलती है. अब देखो, कल the only reason I did not see for your information, I did not make a analysis video for today, right? Yesterday I did not post any analysis video. The only reason is because whatever levels I give, the markets are not changing on a daily basis. See, I'll make you see. अगर मैं आपको लेवल्स भी दे दूंगा ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. मैं पिछले 4 दिन से 50,250 का लेवल दे रहा हूँ. मार्केट गया भी एक दिन, फॉल्स ब्रेकआउट देके आ गया एंड वी गॉट ट्रैप्ड, ब्रूटली वी गॉट ट्रैप्ड. ये देखो यहाँ पे गिरा, यहाँ पे हम पुट्स में थे और यहाँ पे हम कॉल्स में भी ट्रैप हुए, राइट? So the same thing I'm repeating to my telegram group members, that there's no point trading these markets. बैंक निफ्टी heavily compress हो चुका है एक particular range में, right? And we need to wait for a particular level to be taken out, right? We'll see what these levels are, but and we'll also discuss for the next week what is the OI data and what will be some crucial levels and supports and resistances on the basis of that OI data, right? So just wanted to make you see that today's average closing, आज की जो बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग आई है, that is 50,002, right? Almost 50,000 की आई है. ऑन द चार्ट्स इट इज़ 49,981, सो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है? तो अब निफ्टी की क्या क्लोजिंग आई है? 23,465. सो विल स्टार्ट अ डिस्कशन विद बैंक निफ्टी. तो देखो, अब मार्केट है ना, एक पैटर्न अपना डिफाइन कर लिया. मैं आपको अगर 15 मिनट्स में ले जाके देखूँ, राइट? सी, इफ़ यू केयरफुली सी, मार्केट खुलता है नीचे एंड वी हमने क्लियरली मेंशन किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कि डीआईएस का बाइंग आएगा. एंड इफ़ अगर मैं आपको अभी दिखाऊं टेलीग्राम ग्रुप, तो आज 11 आई थिंक 10:34 एग्जैक्टली मैंने मैसेज किया था कि हो गया अब मूवमेंट. अब मूवमेंट मतलब डीआईएस की बाइंग हो गई और अब मार्केट होने चला है रेंज बाउंड. 10:34 में मैंने मैसेज किया था, ये वाली कैंडल हुई एंड जस्ट आफ्टर 10:34 ये पूरा मार्केट देख लो. तो एग्जैक्टली exactly मैंने यही मेंशन किया कि देखो यही हो रहा है 3 दिन से. मार्केट कहीं भी खुलेगा इररिस्पेक्टिव एक बाइंग आएगी विच इज़ डी आई एस बाइंग, जो डी आई बाय करके जाता है. ये तो क्या, चलो गैप अप खुल गया, अब यहाँ पे ये वाली बाइंग, यहाँ पे ये वाली बाइंग. तो देर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ बाइंग इन द मार्केट. चाहे मार्केट इररिस्पेक्टिव कहीं भी खुले, एक बाइंग आएगी और उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा. देखो, आज खुला ऊपर आया रेंज बाउंड, गैप अप खुला रिट्रेस किया रेंज बाउंड, ये थोड़ा सा गैप डाउन फ्लैट ही खुला था ऊपर रेंज बाउंड. तो यही दिस हैज़ बीन अ पैटर्न फॉर दिस वीक फ्रॉम फॉर पास्ट 5 डेज, ठीक है? तो अब डील करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, राइट? एक बार मैं आपको वीकली पे ले जाता हूँ टू गिव अ इन डिटेल पर्सपेक्टिव आपको, ठीक है? देखो,
अब मार्केट ने क्या किया है, नॉट मार्केट, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अगर आपको थोड़ा सा भी चार्ट का नॉलेज होगा तो आपको मालूम होगा ये क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जो लोग ये देख रहे हैं ये क्या पैटर्न है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एन इनसाइड कैंडल, राइट। इनसाइड कैंडल का डेफिनेशन क्या होता है, जब भी किसी एक कैंडल, जो पूरा एक ऑनगोइंग करंट कैंडल है, उसकी बॉडी इंक्लूडिंग द विक इज इनसाइड, और मतलब उस जो प्रीवियस कैंडलस्टिक की रेंज उसके अंदर है, देन दिस कैंडल इज कॉल्ड इनसाइड कैंडल। एंड इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी इतनी ब्यूटीफुली वर्क करती है, मैं आपको भी बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ इधर। इसका लॉजिक क्या होता है, अगर ट्यूसडे को ऑन द अपसाइड 50 250 निकलता है तो आप एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो टू 500 एंड टिल 51,000, कुछ ऐसा मूव कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड, ऑन द डाउन साइड हमें जो लेवल टेक केयर करना है, ये मैं वीकली बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको आई विल एक्सप्लेन द रीज़न कि वाई इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी इज सो इम्पॉर्टेंट। ऑन द डाउन साइड वी नीड टू टेक केयर ऑफ द लेवल 49,545 या 49,500 मान लो आप मोटा मोटा, ठीक है। अगर 49,500 के नीचे निकलता है, ठीक है, तो ऑन द डाउन साइड 49,545। अब देखो, इनसाइड कैंडल हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी क्या होती है, तो अब एक बार बैक टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पहले भी अगर कहीं बना हुआ है तो, और वो भी ऑल टाइम हाई पे, तो इसका हमने कैसे यूज़ किया हुआ है ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइड कैंडल। ये देखो एग्जैक्टली ये इनसाइड कैंडल थी, ये कैंडल इनसाइड है। एंड अगर आप देखोगे तो जब इस इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो कितना अच्छा मोमेंटम आया, एटलीस्ट कहाँ से 45,200 से 43,600, ऑलमोस्ट 1500 से 2000 पॉइंट का मूव आया जब इस इनसाइड कैंडल का लो निकला। अब इनसाइड कैंडल का अगर जब हाई भी आप निकालोगे ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये इनसाइड कैंडल का हाई निकला बॉटम से ऊपर। तो जनरली अगर ऑल टाइम हाई पे ऐसा आपको एक इनसाइड कैंडल दिख जाए तो इसका बहुत यूज़फुल है। एंड सिर्फ आपको नेक्स्ट वीक के लिए मैं पूरा बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए, ट्यूसडे के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, नेक्स्ट वीक में कभी भी ये दो लेवल्स निकल जाएं, इनको अपने नोटिस बोर्ड पे लगा लेना ज़ोर से। एंड ये लेवल्स मार्क करके रखना 50 250 एंड 49 500, ठीक है। ये दो क्रूशल लेवल्स है वीक के लिए। मंथली मैं अभी डिस्कस करूंगा नहीं, मंथ के बीच में है। एक बार मैं आपको आर्ली पे दिखाता हूँ। आर्ली में बैंक निफ्टी ब्रूटली साइडवेज था ये वीक, ऑप्शन बायर्स ने तो पैसा नहीं मारा। मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी का चार्ट कैसे ऊपर गया, बट जो 23,200 का कॉल है वो कैसे साइडवेज रह गया और डी के करेगा, वो दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो तो आप कॉल ऑप्शन होल्ड करके बैठो, राइट। तो अच्छा एक बात और, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो प्लीज़, इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर लीव अ कमेंट, लीव अ लाइक, एंड इफ़ यू आर समवन न्यू एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स। सो बैंक निफ्टी में देखो आज क्लोजिंग, एवरेज क्लोजिंग आई 50,000 की। तो आपको मार्क क्या रखना है, सिंपल है, मैंने आपको बताया इनसाइड कैंडल, और ये पूरा वीक यही रेंज है। तो कुछ नहीं, आपको क्यों फालतू में अपने को, वाई डू वी हैव टू कॉम्प्लिकेट एनीथिंग, सिंपल ये दो हैं, और डेली में भी यही रहेगा। आई मीन 15 मिनट्स फॉर इंट्राडे ट्यूसडे, राइट। बस अब इसका एक डिस्कशन कर लेते हैं कि बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन खुल गया तो हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। देखो बड़ा गैप अप अगर खुल गया, मान लो फॉर लेट्स सपोज 500 पॉइंट का गैप अप खुल गया मार्केट में, पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर खुल गया तो क्या करोगे, देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर 50 250 के ऊपर खुल रहा है तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो, उन्होंने सबने अपॉर्चुनिटी मिस की होगी, तो वो क्या करेंगे, जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, एक बार मार्केट को यूँ लेके आएंगे, चाहे लेट्स सपोज यहाँ खुल गया, वो मार्केट को यूँ लेके आएंगे। अगर मार्केट को एक्चुअल में बुलिश होना है एंड जो बड़े ट्रेडर्स हैं दे वांट टू टेक द मार्केट ऑन द अपसाइड, तो ये यूँ लेके आएंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, कॉलर्स को सेलर्स को ट्रैप करेंगे लिक्विडिटी के लिए, एंड यहाँ से एक बेस बनेगा, या फिर यहाँ तक आ सकता है जो प्रीवियस डे क्लोजिंग होता है, या फिर 50 250। ये दो लेवल पे मार्केट अगर बड़ा गैप अप होता है तो उसके चांस में है, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगले वीक ये दो लेवल्स निकलेंगे 50 250 या 49 545, आई एम नॉट गारंटिंग यू, अगर नहीं निकला फ्लैट रह गया तो हो सकता है नेक्स्ट वीक भी पूरा यूँ साइडवेज करके ख़त्म कर दे। ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये लेवल्स निकल रही है हम तभी ट्रेड करेंगे। मैं आज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देख रहा था कि आज लॉस के लेवल, लॉस परसेंटेज लोगों का ज़्यादा था। अब मैं कैसे समझाऊँ, मैं पूरे हफ्ते 4 दिन 5 दिन से चिल्ला रहा हूँ मत ट्रेड करो मत ट्रेड करो, इसमें आप ट्रैप हो गए। बट ठीक है, अब मैं आपके घर पे आके आपके मोबाइल से लेके थोड़ी मैं ट्रेड आप पंच कर रहा हूँ तो आपको रोकूंगा।
मेरा काम है बोलना एंड अलर्ट करना। बाकी आपका देखो, अगर आप ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, आपका मनी का लॉस होगा, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। फॉर इंट्राडे भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो ये जितने भी यहाँ पे बाइंग बिल्ड हुई है ना, ये सब ट्रैप हो जाएंगे। ये सब ट्रैप होंगे तो पहले तो ये एग्जिट करेंगे। तो अगर एक गैप डाउन खुलता है कुछ यहाँ पे लेवल पे, तो एक डाउन मूवमेंट और आ सकता है, क्योंकि ये सारे पैनिक में एग्जिट करेंगे। फिर जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करके गए हैं, ठीक है, वो एक प्रॉफिट बुक करेंगे तो हल्का सा मूवमेंट आएगा। एंड फिर मार्केट कुछ ऐसा ऐसा ट्राई कर सकता है। बट अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन जाता है तो एक पहला रहता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आपका एक रिट्रेसमेंट आता है। तो एक लेट्स सपोज यहाँ खुल गया तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो मेरे लिए मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ऑन द डाउन साइड ये स्विंग निकालता है मार्केट 48,900 का, तो फिर मार्केट के लिए नीचे जो आपके इलेक्शन रिजल्ट के लोज हैं उनका लेवल खुल जाएगा, राइट। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट 5250 का लेवल निकालता है तो स्ट्रेट आपको पहला लेवल मिलेगा 5500 का। 5500 निकलेगा 51,000। 51,000 क्रॉस होगा तो 51,250, ठीक है। ये वाला 51,250 का लेवल आप मार्क कर लो, ठीक है। डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, आप यहाँ पे एक साइकोलॉजी समझो। यहाँ से जितने भी लोगों ने बाई किया हुआ है वो कहाँ प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे? यहाँ पे बुक कर चुके होंगे, यहाँ पे बुक कर चुके हैं, यहाँ पे बुक कर चुके होंगे। उनको दिख रहा है मोमेंटम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जब नीचे से जो आए हुए लोग हैं जिन्होंने नीचे से बाई किया, वो सब बुक कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है। तो अब यहाँ से दो ही चीज़ होगी, या तो मार्केट ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, राइट। ठीक है, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के लिए डिस्कशन, राइट। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। पहले वीकली पे चलते हैं निफ्टी में। एंड मैं इसकी ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब निफ्टी ने ऑन द कॉन्ट्ररी जो क्लोज दिया है, अच्छा, एक बार बैंक निफ्टी का और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, बैंक निफ्टी मुझे कंपेरेटिवली निफ्टी से वीक लग रहा है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होता तो वो लीड करता निफ्टी को। एंड ये जो कैंडल का क्लोज है, ये मार्केट कुछ ऐसा देता या एटलीस्ट इसका 50% तो रिट्रेस करता इस रेड पार्ट का, जो कि उसने नहीं किया। तो बायस नहीं बना रहा हूँ मैं। अगर मार्केट 49,545 निकालता है ऑन द डाउन साइड, तो एक बड़ा अपने को ये पूरी ऑन द डाउन साइड कैंडल आपको कवर करने को देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में, ठीक है। बस ये दो लेवल्स क्रूशल रहेंगी बैंक निफ्टी के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग दी है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,465, ठीक है। तो इसमें आपको क्या डिस्कशन याद रखना है, देखो, वीकली हाई एंड वीकली लो, ठीक है। तो वीकली हाई आपका ये हो जाएगा और वीकली लो ये हो जाएगा। सिर्फ ये दो लेवल्स आपको टेक केयर करना है। डेली पे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे वीकली लेवल पे अभी तो कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही, क्योंकि मार्केट देखो नीचे गया, पर नीचे से पूरी बाइंग आ गई। एंड दिस वीक ऑल्सो मार्केट ने सस्टेन कर दिया। तो नेगेटिविटी मेरे लिए सिर्फ तब आएगी जब ऑन द डाउन साइड 23,200 का लेवल ब्रेक होकर 1 आवर पे सस्टेन हो गया, ठीक है। तो ये हम डेली पे एक बार चलते हैं। अब डेली में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट ने ये जो चार कैंडलस्टिक बनाई है ना, इसमें मैं लिख के देता हूँ कि किसी कॉल राइटर का पैसा नहीं बना, कॉल बायर का पैसा नहीं बना होगा। क्योंकि अब देखो, डेली पे मार्केट इतना गया ऊपर, इसका मैं आपको कंपेयर कराता हूँ 22। अच्छा, अब आपको कोई आके ये बोले ना कि यार मैंने तो यहाँ कॉल बाय किया होगा, देखो स्पॉट पे 23,200 से 23,450 आ गया, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स का मूव है, करेक्ट। तो इस हिसाब से तो अगर आप कॉल बाय करके बैठोगे तो आपका कॉल में भी मूवमेंट होना चाहिए, बट नहीं हुआ, राइट। देखो, डेली पे ले जाता हूँ। ये देखो, ये डेली का चार्ट है। पिछले 5 दिन में 5 दिन का है था 352, आज उसका क्लोज आया 290, 50 पॉइंट का डीके है। जबकि डेली में स्पॉट जा रहा है ऊपर, बट आपका चार्ट देखो ये कहाँ क्या कैसे ट्रेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू होल्ड ऑप्शंस फॉर द होल वीक। अगर आपको होल्ड करना है तो कॉल सेल करो। अब देखो, आपने कॉल सेल किया होता तो मार्केट ऊपर भी गया तो भी आपको टाइम डीके मिल गया, तो भी आपको लॉस नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे सेल किया होगा, आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा 50 पॉइंट का। तो ये पावर होती है कॉल सेलिंग की, ये होती है ऑप्शन सेलिंग की पावर, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि 90% जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो मनी लूज करते हैं, क्योंकि 90% ऑप्शन बायर्स हैं। वो सोचते हैं कि हम बाय करके रखेंगे, बड़ा मूवमेंट आएगा, बट वो आता ही नहीं है, साइडवेज हो जाता है मार्केट ऐसे। तो ये डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि भले ही स्पॉट ऊपर जा रहा हो बट आपका ऑप्शन नहीं ऊपर जा रहा है, क्योंकि टाइम डीके है, विक्स इतना लो है, राइट। अब इसमें हमने क्या डिस्कशन किया, ये देखो सिर्फ दो क्रूशियल लेवल हैं इसमें भी, और पिक्चर परफेक्ट क्लोज दिया मार्केट ने। अगर मार्केट 23,500 के ऊपर निकालता है तो मेरे लिए इसमें तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। पहला 23,500 के ऊपर निकलेगा, पहला लेवल 650, आई थिंक 750 मान लो आप। पहला लेवल 750 के ऊपर 24,000 स्ट्रेट,
24,000 तक अगर मार्केट प्रीवियस वीक हाई निकालता है तो मेरे लिए 24,000 के टारगेट्स ओपन है, प्रोवाइडेड कि उसमें आपको मोमेंटम मिले। अब नेक्स्ट वीक भी अगर मार्केट टुकुर 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 ऐसे जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, नहीं बनेगा पैसा। क्योंकि इसमें क्या होता है देखो, सेम निफ्टी भी सेम यही रिपीट कर रहा है, खुलता है, नीचे आता है, फिर टुकुर ऊपर, नीचे आता है टुकुर ऊपर, नीचे आता है टुकुर ऊपर, नीचे आता है टुकुर ऊपर। आज तो हद ही हो गई। आज आप देखो कितना साइडवेज मोमेंटम कर दिया निफ्टी ने, राइट। ये देखो एक पूरी रेंज में कंप्रेस होकर रह गया, इतना सा रेंज में। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि डेली पे सिर्फ आपको ये दो लेवल्स ध्यान रखने हैं, 23,500 एंड डाउन साइड पे 23,200, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इंडेक्सेस में जब आएगा, जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों सिंक में आ जाएंगे। बैंक निफ्टी तोड़ रहा है ऑन द डाउन साइड 49,545, निफ्टी तोड़ रहा है 23,225, तब जाके आपको एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल मूवमेंट मिलेगा। वरना तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट यूँ निकाल दे पूरा। ठीक है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक बार 15 मिनट्स में चलते हैं और इंट्राडे में देख लेते हैं कि मार्केट में आपको कैसे करना है। कुछ नहीं, सेम लेवल्स ऑन द अपसाइड, आपको सिर्फ 23,500 का ब्रेकआउट का वेट करना है। एंड ट्यूसडे के दिन एक आर्ली कैंडल स्टिक इस पर क्लोज होने दो, यूँ आर्ली बोल रहा हूँ मैं, 15 मिनट्स नहीं, आर्ली। ठीक है। अब इन द केस ऑफ बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, इफ द मार्केट्स आर ओपनिंग अ वेरी बिग गैप अप, सेम स्ट्रैटेजी, वेट फॉर द मार्केट्स टू रिट्रेस। देखो आज भी ऐसे हुआ, गैप अप खुला, मार्केट रिट्रेस किया, गैप अप खुला, मार्केट रिट्रेस किया। तो गैप अप या गैप डाउन कभी भी खुले, वेट फॉर द मार्केट टू रिट्रेस। यहाँ पे रिट्रेस आएगा प्रीवियस डे क्लोज के पास या प्रीवियस डे हाई के पास, करेक्ट। तो आज का प्रीवियस डे हाई ये है, मतलब ट्यूसडे के लिए यही होगा। तो यहाँ तक आने का वेट करना। इन द केस अगर आप गैप डाउन खोल रहे हो मार्केट को, तो ये जितने भी सेम स्ट्रैटेजी, जितने भी यहाँ बायर्स हैं, सब ट्रैप होंगे और एक व्यू मेरा नेगेटिव बन सकता है। ठीक है। अपसाइड के लेवल्स मैंने 24,000 दे दिए, 23 अगर 200 निकलता है तो 23,000 मेरे लिए पहला लेवल होगा। अगर ये भी टूटता है तो उसके बाद मेरे पास 23,000, हाँ 22,600 सेकेंड लेवल होगा। ये भी टूटता है तो मेरे को एक शार्प मूवमेंट मिल रहा है 22,500 तक का। तो ये डाउन साइड के लेवल्स है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक साइकोलॉजी पॉइंट समझाता हूँ। कभी भी जैसे देखो यहाँ पे इतने बायर्स, देखो यहाँ पे सेलर्स आए, राइट। इस एक सेकेंड, डूडल क्यों ड्रॉ नहीं हो रहा है, हाँ। यहाँ पे इतने सेलर्स आए इस कैंडलस्टिक में, इस कैंडलस्टिक, ये तीन कैंडलस्टिक्स में बायर्स आए, राइट। और अब ये चार कैंडलस्टिक्स देख के आपको क्या लग रहा है कि समवन इज ट्राइंग टू सेल, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है बट नीचे से कोई बाय भी कर रहा है। तो ये एक बहुत कांस्टेंट फाइट हो सकता है, कंटिन्यू भी रह सकती है बुल्स एंड बियर्स के बीच में। बट वी नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ द लेवल्स, क्योंकि अगर डाउन साइड पे टूटा तो बहुत बड़ी पुट अनवाइंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये 22,200 पे, 23 400 पे हैवी पुट राइटर्स हैं। तो अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो ये सब ट्रैप होंगे और आपको बड़ा एक डाउन मूवमेंट क्रिएट करके देंगे। अपसाइड पे 23,500 इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस अभी ऑप्शन डेटा के हिसाब से। मैं ऑप्शन डेटा पे जाऊंगा, बट आप ये देखो अब यहाँ से मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है। तो मेरे लिए एक लॉजिकल चीज़ क्या होगी कि पहले इस तक आ जाओ, 23,000 पे बेस बनाओ और फिर यहाँ से निकलो, राइट। बट मार्केट आना ही नहीं चाह रहा है, कोई कोई है जो मार्केट को गिराना ही नहीं चाहता है, करेक्ट। तो ये है, और देख के भी लगता है क्योंकि यहाँ से जो शार्प रैली हुई है इसका एक रिट्रेसमेंट तो मार्केट देना बनता है। तो ये एक लॉजिकल मेरे लिए बनता है, क्योंकि अगर मार्केट देखो, मैंने ये लास्ट वीक की भी वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, मार्केट स्ट्रेट चला गया तो ये जो करेक्शन आएगा ना, ये बहुत स्टीप करेक्शन होगा। फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि मेरे को क्या करना है, राइट। ओके। तो ये था बैंक निफ्टी का। एक बार हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। मैं ऑप्शन डेटा, ये बैंक निफ्टी का है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, सो एवरीबडी हैव अनवाइंडेड देयर पोजीशंस, राइट। अगर आप देखोगे तो 12 लाख और 21 लाख का ऑप्शन अनवाइंड हुआ है। तो हम सीधा टोटल वाई पे चलते हैं। तो टोटल वाई पे हमें एक हैवी रेजिस्टेंस दिख रहा है 50,000 पे। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर 5250 ऊपर सस्टेन करता है तो ये सारे जो 27 लाख कॉल राइटर है ना, ये सब के सब ट्रैप होंगे और आपको 500 और 51,000 तक मूव करके देंगे। ऑन द डाउन साइड हमें सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, 49,700 पे अच्छा मिल रहा है। तो 49,700 अगर मार्केट आता है तो पहला एक बाउंस लेगा। अगर ये भी टूटता है तो 49,500, 49,500 टूटा तो आपका स्ट्रेट 49,000 आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ 49,500 के नीचे, और वीकली लो भी है मार्केट, इसलिए लोग बना के गए हैं क्योंकि उनको मालूम है वीकली लो है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है। ऑन द अपसाइड 5500 एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो मार्केट अगर 5500 तक पहुँचता है तो एक पुल बैक आ सकता है 400 350 तक, 250 50 5350 5400 तक। एंड देन अगर मार्केट को और ऊपर जाना होगा तो मार्केट फिर जाएगा तो 51,000 तक मार्केट पुल करेगा।
ठीक है, ये था आपका ओआई का डेटा। अब बैंक निफ्टी का ओआई का डेटा, निफ्टी के ओआई डेटा में देखो क्या दिख रहा है। ओआई चेन में फिर वही सेम अनवाइंडिंग, बट पुट ओआई ज़्यादा अनवाइंड हुआ है। और यही सेम ट्रेंड हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है, पुट ओआई ज़्यादा अनवाइंड हुआ है। तो मतलब लोगों को डर है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो हम फंस ना जाएं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा पुट राइटिंग अनवाइंड करके गए हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, अगर साइन मार्केट बहुत स्ट्रांग होता है यहाँ पे इन लेवल्स पे, तो लोग अपने कॉल सेल्स ज़्यादा अनवाइंड करके जाते, जो कि हुआ नहीं, राइट। अब इसमें अगर आप बैंक निफ्टी में ओआई देखोगे, जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, तो बैंक निफ्टी में राइट, बैंक निफ्टी का देख लिया, हम निफ्टी का देखते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में ओपन ओआई देखो, 23,400 रिमेन्स अ गुड सपोर्ट। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर 23,400 टूटा तो आपको एक 23,200 तक का मूव तो मिलेगा ही। 23,200 पे ये देखो, 23,200 पे एक डिसाइडिंग मूव होगा। हमने जो निफ्टी के लेवल्स देखे थे उसमें क्या देखा था कि 23,200 टूटेगा, राइट। तो आपको शॉर्ट कब करना है मार्केट को, ओपन ओ आई डेटा के हिसाब से 23,200 टूटेगा तो 23,100 पे सपोर्ट है। बट अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे को निफ्टी का डेटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि 23,400 पे हैवी पुट राइटिंग है। तो ये टूटा तो टूटते चले जाएंगे स्ट्राइक प्राइस, और ये सब आपको शार्प अनवाइंडिंग दिखेगी पुट ऑर्डर्स की, एंड ये आपको बहुत डाउन मूव करेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, टोटल ओआई में आपको ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग डेटा दिख रहा है मेरे को तो यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे, राइट, तो ऑन द अपसाइड हमारे पास 23,500 पे रेजिस्टेंस है। अगर वही बोल रहा हूँ 550 मार्केट निकालता है तो ये सारे कॉल रेटर्स ट्रैप होंगे, और आपको एक नेक्स्ट मूव मिलेगा 23,600 एंड 700 तक। आगे जाने के बाद रेजिस्टेंस है, बट अगर 550 निकलता है तो ये सारे जो 23,500 पे आपके कॉल राइटर्स हैं, ये सब ट्रैप्ड फील करेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि निफ्टी में ये रेंज बहुत क्रूशियल है अब आपके पास। ठीक है, तो ये था ट्रेडर्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए ट्यूसडे का डिस्कशन। देखो, मैं आपको दो तीन पॉइंट्स रीट्रेड करता हूँ, प्लीज़ टेक केयर। आप अपना जो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप पोजिशंस को ज़्यादा होल्ड मत करो टाइम डीके में, क्योंकि अब विक्स बहुत लो आ चुका है। मूवमेंट आपको मोमेंटम इतना मिलेगा नहीं, आपको सीधा ऑप्शन डीके देखने को मिलेगा, राइट। मोमेंटम कब आएगा, जो मैंने लेवल्स आपको मार्क करवाई हैं उन्हीं लेवल्स के बाहर मोमेंटम मिलेगा, राइट। ये निफ्टी की लेवल्स हैं, ये बैंक निफ्टी की लेवल्स हैं, आप पॉज करके इनको मार्क कर लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक, क्योंकि ये पूरा वीक साइडवेज निकल चुका है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक तो एटलीस्ट एक ट्रेंडिंग मूव मिले विच विल कम आउटसाइड द रेंज ऑफ दीज लेवल्स विच आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ़ यू आर समवन न्यू जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, लीव अ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट, help us grow. Thanks traders, stay safe in the markets.